Yes, good morning all present here. It's our history and civics class of standard 10. Again we will start with this pledge. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and I encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So, I will continue our first chapter from civics part. So we have already discussed on unitary government, federal government. Okay? We were discussing the union parliament. In the parliament, what is first? I'm going to revise the parliament. There shall be a parliament for the union, which shall consist of the president and two houses to be known respectively as the Council of States and the Houses of the People. So we'll read about the House of the Parliament, the Lok Sabha. The Lok Sabha or the House of the People is the lower chamber of the Union Parliament. As its name suggests, it gives representations to the people who elect its members directly. तो लोकसभा क्या है, इसका another name क्या है, the House of the People. जैसे नेम ही suggest कर रहा है कि House of the People, लोगों का house. ठीक है, it gives representation to the people who elect its members directly. तो उन members को representations देता है जो people खुद डायरेक्टली अपने लिए चुनते हैं. ठीक है. कॉम्पोजिशन ऑफ द लोकसभा, तो कैसे बनता है लोकसभा. ठीक है. द लोकसभा इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ adult suffrage. The maximum strength of the house advised by the constitution is about 552 to 530 members to represent the state, 20 members to represent the union territory, and not more than 2 members of the Anglo-Indian community to be nominated by the president. If in his opinion that community is not adequately represented in the house, the total elected membership is distributed among the states roughly on population basis. At present the strength of the house is 545 members. तो अभी what is the strength of the लोक सभा 545 members. ठीक है. तो लोकसभा क्या है, लोकसभा इज composed of representatives of the people chosen by direct election on the basis of adult suffrage के थ्रू जो क्या है हम इसके members को हम वोट करते हैं, चूज़ करते हैं. एडल्ट सफरेज क्या है कि वो जो 18 की एज होने पर हमें वोट कास्टिंग का राइट मिलता है. ठीक है. एडल्ट सफरेज वो उसके बाद एडल्ट फ्रेंचाइजेज, द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज विल डिस्कस लेटर ऑल्सो. आफ्टर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, लोकसभा के लिए सीट्स की रिजर्वेशन भी होती है. जैसे हम आप सुनते हो ना कि ये सीट कुछ लोग उन लोगों के लिए सीट रिज़र्व है, ऐसे ही लोकसभा के लिए सीट्स भी रिज़र्व होती है फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए और जहाँ फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. ठीक है. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स क्या है लोकसभा की, टू प्रोवाइड इक्वल पोलिटिकल अपॉर्चुनिटी टू ऑल. सम सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड इन अ SC reserve constituency. Only someone who belongs to the scheduled caste is allowed to contest elections. Currently in the Lok Sabha 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled ट्राइब्स. वही जो बात मैंने आपको पहले बताई कि जो है जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिलती है इक्वल मिलती है. जो सीट्स है वो रिज़र्व होती हैं एससीज़ के लिए, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की होती है, कुछ शेड्यूल कास्ट की होती है.
ठीक है। तो 84 सीट्स रिजर्व्ड होती है शेड्यूल कास्ट के लिए एंड 47 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है लोकसभा की। तो फ्रेंचाइजी एंड इलेक्शन, the member of Lok Sabha are directly elected on the basis of universal adult franchise, secret ballot, proportional representations, and single transferable vote. A voter is registered at the age of 18 years without any discrimination of caste, creed, color, religion, or sex. In other words, a citizen of India who has attained the age of 18 years is entitled to vote provided he is not otherwise disqualified. This is called a universal adult franchise. So what is the universal adult franchise? Same, a citizen of India who has attained the age of 18 years is entitled to vote provided. ठीक है, तो वो वोट डाल सकता है। द सेक्रेट बैलेट क्या है? द सेक्रेट बैलेट इज अ सिस्टम ऑफ वोटिंग वेयर द वोटर्स चॉइस इज नॉट रिवील्ड। द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ electoral areas which are called constituencies. Constituencies क्या है? हल्के जहाँ वोट्स होती है। तो सेक्रेट बैलेट सिस्टम में क्या होता है? वोटर्स अपनी जो चॉइस है ना वो नहीं प्रकट करते। द होल कंट्री, पूरी कंट्री डिवाइड कर ली जाती है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्टोरल एरियाज़ में। तो मींस अलग अलग एरियाज़ बना लिए जाते हैं इलेक्शंस के लिए। तो हर एक एरिया में से वोटर्स अपनी वोट कास्ट करते हैं। क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप, तो वोट कास्ट करने के लिए क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप एज अ मेंबर ऑफ लोक सभा। क्वालिफिकेशंस नीडेड फॉर अ पर्सन टू अ मेंबर ऑफ द लोक सभा आर। लोक सभा का मेंबर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, नो नीड टू एक्सप्लेन। ही शुड बी एटलीस्ट 25 years of age. He should have his name in the electoral rolls in some part of the country. कंट्री के किसी भी पार्ट में जो इलेक्टोरल एरिया है उसमें उसका नेम होना चाहिए वोटर सूची में। मीन्स ही शुड नॉट बी एन इंसॉल्वेंट, ही शुड नॉट बी इन डेब्ट एंड शुड हैव द एबिलिटी टू मीट हिज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। ही शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल। ही शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। तो वो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो, ठीक है। तो उसका क्या है? अनसाउंड माइंड ना हो। अनसाउंड माइंड ना हो मीन्स हम क्या बोल सकते हैं इसको? बेवकूफ़ मन जो होता है ना, बेवकूफ़ मन वाला ना हो वो अनसाउंड माइंड। प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, जैसे मैंने पहले बताया कि अपराधी घोषित ना किया गया हो कहीं से, वो कोई भी प्रॉफिट वाला काम ना करता हो गवर्नमेंट के अंडर, कोई गवर्नमेंट सरकारी काम ना करता हो, वी कैन से, ठीक है। तो उसके बाद है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये पहले ही मैंने बोला कि वो हल्का वोट्स के लिए जो हल्के बन जाते हैं ना, कि एरिया वाइज डिवीज़न हो जाती है। इन अवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू वेल defined territorial areas for the purpose of election to parliament, state legislative assemblies. These areas are called electoral constituencies. The voters who live in an area elect one representatives. तो क्या है कि वो कि इलेक्शंस के लिए एरियाज़ को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड कर लिया जाता है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ कौन है? वोट वाले जो एरियाज़ होते हैं जहाँ इलेक्शंस होनी है। द वोटर्स हु लिव इन एरिया, उस एरिया में इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशंस में जो हु लिव इन एरिया इलेक्ट वन, उस एरिया में रहने वाले हर एक वोटर अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं। तो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप क्या नहीं होना चाहिए? अ पर्सन शैल बी डिसक्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज or for being a member of the Lok Sabha or Rajya Sabha of a state if he holds any office of profit under the government of India or the government of any state। अगर वो कोई गवर्नमेंट काम करता है, ठीक है, स्टेट का हो या सेंटर का हो। if he is unsound mind and stands
सो डिक्लेयर बाय अ कम्पिटेंट कोर्ट, किसी भी कोर्ट द्वारा उसे अपराधी या बुरा ना घोषित किया गया हो ना, कोई मीन्स कोई भी उसके ऊपर केस ना चल रहा हो. इफ़ ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा हो. इफ़ ही इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया का नागरिक ना हो. और हैज़ वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजन्स ऑफ अ फॉरेन स्टेट, अपनी मर्जी से उसने फ़ॉरेन की सिटीज़न ले ली हो, तो वो भी डिसक्वालीफाई हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होने के लिए. और इज़ अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजियंस और अधेरेंस टू अ फॉरेन स्टेट, वही कि अपनी मर्जी से वही फॉरेन स्टेट का उसके पास सिटीजनशिप ना हो. इफ़ ही इज़ सो डिसक्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए लॉ के अंडर उसे डिसक्वालीफाई ना किया गया हो. So our class is only up to this much. Chika will continue with another content in the next class. With this, goodbye to all of you.